we have started with geography and drainage. Okay, and in that part we have completed India. I hope you're well being revised with the Indian part, like India part, right? Have you done? So India consists of the divisions like coming from the north to the south, we have got Himalayan range that consists internally with a division like Shivalik range, Lesser Himalayas, Greater Himalayas, and Trans Himalayas. Below to the Himalayan range, we have got North Indian Plain. Again, there is a two division in that. One is to the to the east of Aravalli, which is called as Ganga Plain, and to the west of Aravalli, the Thar Desert. Coming to the south side, again, we have got the peninsula part, which consists of many plateaus such as Bundelkhand, Baghelkhand, Malwa Plateau, Mewar Plateau, then Maharashtra Plateau, Karnataka Plateau, and Telangana Plateau. So we have seen Himalayas, North Indian Plain, Plateau region, the three part. Then we come across the coastal plain area, the western coastal plain, the eastern coastal plain. In that we have studied that western coastal plain bit a narrow part because the deposition activities is lower in this side. The rivers originating from the west of Western Ghat are swift and short. They develop estuaries. They do not develop deltas over here. And the rivers originating from the eastern part of the Western Ghat, which flow towards the east direction towards the Bay of Bengal, they're long rivers. They create deltas. The deposition activity on the eastern part is more. So the eastern part is much broader as compared to the western part, western coastal plain. So therefore, fourth division is the coastal plain, and the fifth division, what we were talking about was the island. We got two islands apart from the mainland of India. One in the Arabian Sea, known as Andaman and Lakshadweep Island, and the one in the Bay of Bengal called as Andaman and Nicobar. So that was what we have learned till yet. Now coming to the physiography of Brazil, and I hope you can like zoom your screens as well if you want to like see clear picture of this. Okay, so coming towards the Brazil part now. Unlike India, Brazil has got many similarities. They too have the plain area, they too have a coastal plain area, they too have the mountainous region, they also have a plateau region as well. So it is very much similar to India in the physiographical nature. In the last chapter, we have learned about the extent of Brazil. We have seen that some part of Brazil lies in the northern hemisphere because it is bit upward side from the equator, but the major part is into the southern hemisphere, that's below the equator. The physiography division of Brazil are as follows. Number one, the highland. I can just mark over here that is Brazilian highland and the Guiana highland. The two highlands. Now, highland is also called as a plateau. This Brazilian highland is also called as Brazilian plateau. So we also have a plateau, right? Then the great escarpment. Now this demarcation, I'll just show you again. The line which is making up as a this one. Okay. So this appears a great escarpment that is just somewhat like our Himalayas do for us. So note that Himalayas block the cool winds blowing from the North Pole to the India and also block the monsoon winds
blowing from the south towards the upside that helps us to maintain the climate in India. And the similar structure is, or the similar feature is the Great Escarpment has. Great Escarpment also blocks the monsoon winds, leading to a high rainfall in this coastal area. As you can see that here it is written as escarpment. You can see in your map as well. Okay, so this is the Great Escarpment. The coastal region, as you can see, there is a democratic on the map. जो किनारा एरिया है. The plains, yes, Amazon river basin comes into the plain part. जैसे अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, तो कोस्टल प्लेन तो आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे आ गया अपना अमेजोन रिवर बेसिन के पास अमेजोन प्लेन एरिया. The island group, yes, this is the island, this is not a part of like Brazil, it's Morozo Island, which is जैसे अपने यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, वैसा इनका आइलैंड यहाँ पे है, जो कि इनके मेन लैंड से ही थोड़ा सा चकअप है. Now coming to the highland, this part and this part, Guyana Highland and Brazilian Island. ठीक है. The southern Brazil is occupied by extensive Brazilian plateau. Now साउथ पार्ट की अगर बात करें तो ज्यादातर ब्राजील का जो साउथ पार्ट है वो ब्राजीलियन प्लेट्यू कहा जाता है. अभी आपने देखा वहां पे ब्राजीलियन हाईलैंड लिखा था, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्राजीलियन प्लेट्यू. इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि ब्राजीलियन हाईलैंड इज आल्सो कॉल्ड एज ब्राजीलियन प्लेट्यू. In the northern part of Brazil stretches the Guiana Highland. तो नॉर्थ वाले पार्ट में क्या है, गुयाना हाईलैंड है, और साउथ वाले पार्ट में ब्राजीलियन हाईलैंड है, दैट इज ब्राजीलियन प्लेट्यू. Brazilian and Guiana Highland together form the core of South American continent. तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो मेन हिस्सा है वो यह दोनों हाईलैंड मिलके बनाते हैं. The main part of Guyana Highland is in Venezuela and it extends up to French Guiana. अब देखो कि इनका ये जो मेन हिस्सा है गुयाना हाईलैंड का, एक्चुअली गुयाना हाईलैंड सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं है. इट इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, लॉन्ग लैंड मास है, वो बहुत बड़ा हिस्सा है. तो कुछ हिस्सा गुयाना हाईलैंड का आ गया है ब्राजील के अंदर. इसका मेन हिस्सा गुयाना हाईलैंड का वेनेजुला में है, जो इनका नेबरिंग कंट्री है, और फ्रेंच गुयाना भी इनका नेबरिंग कंट्री है. गुयाना हाईलैंड अगर देखा जाए तो वेनेजुला से लेके फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है. In Brazil, it covers the state of Roraima, Para, and Amapá in the north. अब देखो गियाना हाईलैंड कितना एरिया कवर करता है. अगर ब्राजील की बात करें तो ये जो तीन स्टेट है, कौन से, रोराइमा, अब रोराइमा कौन सा है, यहाँ पे जो आएगा वो ये है आपका पारा और अम्पा. ठीक है, तो ये रोराइमा, ये पारा, ये अम्पा. ठीक है, इन तीनों स्टेट्स को कवर करता है गियाना हाईलैंड, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है ये. So just take a screenshot of this one. You can like go through once. Done. Okay. Next. The lower part of this highland is found in Brazil. तो ब्राजील का जो गुयाना हाईलैंड है उसका लोअर पार्ट ज्यादातर, यानी मैंने आपको कहा ना अभी, गुयाना हाईलैंड बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका जो लोअर पार्ट है वो आपके ब्राजील में आता है. ठीक है. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इनका जो हाईएस्ट पीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपना हाईएस्ट पीक क्या था, अब लेट यू नो, लाइक मैंने आपको बताया था ऐसे कि K2 जो माउंटेन है 8848 मीटर्स वाली हाइट वाली जो माउंटेन थी,
इंडिया के मैप में हमने देखा था, मैंने आपको बताया था, वो ग्रे शेड में वहाँ पे हाईलाइटेड था, राइट। तो सिमिलरली वी गॉट यहाँ पे पिको दी नेबिलिना, दैट इज सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा है। ज्यादा मैप्स में कैसा होता है, मैप्स में ट्रायंगल में अगर कुछ चीज होता है दैट इज अ पीक पॉइंट, ठीक है। तो बट द हाईएस्ट पीक ऑफ द ब्राजील इज पिको दी नेबिलिना व्हिच इज 3014 meters, not even half of our K2, राइट। तो 3400 मीटर्स वाली हाइट जो है यहाँ पे बॉर्डर पे आती है बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुला। काउंट तो उसका ब्राजील में होता है बट एग्जैक्टली अगर दिखाएंगे तो वो वेनेजुला और ब्राजील के बॉर्डर पे आता है, ठीक है। The regions to the east and the south of Brazilian highland have an altitude of more than 1000 meters. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्लिंक हो रहा है अभी ऑरेंज और ब्राउन कलर में, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हाइट मैप में देखे होंगे, येलो और ऑरेंज का हाइट क्या दिया यहाँ पे 1000 मीटर्स। तो जो साउथ वाला जो पार्ट है, साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है ब्राजीलियन हाईलैंड का, वो ज्यादातर थोड़ा सा हाइटेड एरिया है विच इज अबाउट 1000 मिलीमीटर्स, सॉरी 1000 मीटर्स वाले पहाड़ है ये एरिया, ठीक है। बट जो दूसरे पार्ट है इसके, जो येलो वाला पार्ट आपको वहां पे दिखा था, बट द अदर पास द एल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 टू 1000 मीटर्स की हाइट इज, जो येलो ग्रीन कहीं कहीं पे है, so that is the height of 500 to 1000 meters. The highland gradually slope towards the north and the slopes are not very steep. ये जो आपके हाईलैंड्स है वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, द स्लोप टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे कोई रिवर्स है तो उनका डायरेक्शन कैसे होगा, नॉर्थ डायरेक्शन स्लोप करने वाली रिवर रहेंगी। याद रखना कि लैंड का स्लोप जैसा आता है वैसे ही रिवर का फ्लो ऑफ डायरेक्शन भी होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाईलैंड का ज्यादातर हिस्सा नॉर्थ की तरफ स्लोप हो रहा है धीरे धीरे, एंड द स्लोप्स आर नॉट वेरी स्टीप, ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं है, इसके लिए वहां पे बोला गया ग्रेजुअली स्लोप, ग्रेजुअली मतलब स्लोली, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, आई होप यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, राइट। Now coming to the next point, the tributaries of Amazon flowing through this region makes rapids and waterfall. अगर ट्रिब्यूटरीज मतलब ये जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं अमेजोन में से निकले हुए, the rivers which are connected to the main river are called as tributaries. Tributaries हम ऐसा भी कह सकते हैं, this is the smaller rivers which take the help of a major river to enter into the sea. Tributaries directly कभी sea तक नहीं पहुंचते, they always take a help of the major river. So tributaries are nothing the branches of the main river बोल सकते हैं। तो अमेजोन की जो फ्लोइंग रिवर है अपनी, उसमें जो ट्रिब्यूटरीज अगर निकलेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर वाटरफॉल्स और रैपिड्स क्रिएट करेंगे। रैपिड मीन्स फास्ट मूविंग वाटर, एंड वाटरफॉल्स आपको पता ही है दिस टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेज भी दिखा दी आपको, और दिस आर वाटरफॉल्स। रैपिड्स आर फास्ट फ्लोइंग एंड turbulent पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अ रिवर, मतलब जब रिवर्स शुरू होती है जगह से और बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में अगर जाती हैं, आई बिलीव यू हैव सीन दी स्पोर्ट्स कॉल्ड एज कायाकिंग। कायाकिंग अगर आपने स्पोर्ट्स देखा होगा, जहाँ पे कुछ लोग बोट के लेफ्ट एंड राइट में बैठते हैं and वो एक साथ में लाइक वो बोलते हैं ना, वो रोइंग करते हैं, ओके, द वेरी फास्ट मैनर, राइट। तो वो जो जहाँ पे वो जो स्ट्रीम यूज कर रहे हैं, जो रिवर यूज कर रहे हैं, बेसिकली वो रिवर नहीं, दैट इज कॉल्ड एज रैपिड्स, उनको रैपिड्स कहा जाता है, ठीक है। नो टुवर्ड्स द नॉर्थ द स्लोप्स आर स्टीप बट नॉट एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब टूटा हुआ, ठीक है, एकदम ब्रोकन पार्ट। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्लोप देखो कैसा स्टीप है, मतलब इस पॉइंट पे अगर आप खड़े रहो तो एब्रप्ट है, एब्रप्ट मतलब टूटा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो स्लोप स्टीप है, टूटा हुआ नहीं है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट की बात करें तो, ठीक है, इवन दिस साइड। तो जैसे जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे तो आपको स्लोप कैसे दिखेंगे, स्टीप दिखेंगे, बट एब्रप्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब वो है यहाँ पे,
A number of rivers take off from the terminal portion to the highland and flow northward to meet Atlantic. अब बहुत सारे यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होती है टर्मिनल पोर्शन दैट सेंटर पोर्शन से हाईलैंड के एंड फ्लो नॉर्थवर्ड फ्लो करती हैं. क्यों? अभी बोला था ना कि इसका फ्लो किस तरफ है, नॉर्थ फ्लो में. हाईलैंड का जो फ्लो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ है एंड दैट्स द रीजन द रिवर का फ्लो कैसा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और ये फिर जाके अटलांटिक ओशन में मिलेंगे. अब यहाँ पे कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो साउथ डायरेक्शन में आएंगे. सम मेजर रिवर्स लाइक उरुगे, परागे एंड पराना, ये 3 रिवर्स है. यू कैन रीड आउट द नेम्स ओवर हियर. देखो ये उरुगे है, नहीं सॉरी, ये उरुगे है, ये पराना है और ये परागे है. अब ये रिवर्स का डायरेक्शन अगर देखो यहाँ पे एरो मार्क दिया हुआ है, so they flow towards the south. ऑब्वियस है क्योंकि वो लैंड एरिया का स्लोप किस तरफ है, साउथ तरफ है. मेजर रिवर्स लाइक उरुगे, परागे एंड पराना ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ द हाईलैंड एंड एंटर अर्जेंटीना. इसकी जो नेबरिंग कंट्री है दैट इज अर्जेंटीना, वहां पे एंटर करते हैं. ओके, फटाफट एक बार आप हाईलैंड खुद रिवाइज कर लो. ये फोटो आप मैं ऐसे रख रहा हूँ, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या आप कैसे अगर टेस्ट हो गया तो हाईलैंड फटाफट रेफर कर लो. कुछ डाउट है तो प्लीज बोल देना मुझे. अंशिका, हेलो. यस सर. ओके बेटा, आपका पढ़ के. सर लास्ट का चालू. ओके कलेक्टेड. हेलो. Hello, Listen, how are you? fine. Great. Have you done with this your reading part? Yes, Okay. So, can I ask you some questions then? sure. Okay, great. Happy to hear that. Fine. So, what is the height of the plateau towards the southern part? Southern part of the plateau range, the Brazilian plateau. What is the height of the Brazilian plateau towards the southern? So, 3014 Uh-huh. meter. No. Thousand meter. Or you are just reading out the screenshots. तो हाइट दिखा वो बता दूं ऐसा. सी 3014 meters जो है ना जैसन, that is the height of the highest peak in Brazil, which is Pico de Neblina. ठीक है, इसकी हाइट है वो. और जो 1000 मीटर कह रहे हो वो मेरे क्वेश्चन का आंसर है. The height of Brazilian plateau in the southern part is 1000 meters. ठीक है, ध्यान दो यार. Yes, sir. सर्वेश. सर्वेश. Yes, sir. Right. In which direction does the slope of the highland is? The Brazilian highland or the Brazilian plateau? Slopes in which direction? South. Sorry. South. North. North. Towards the north. Sure. Once you said south and then you're saying No, north. sir, no. I was a little bit confused.
Okay, so now you're clear. Like it flows in Yes. the north direction. North. Okay, good. Fine. Okay, mute yourself. Thank you. Pranit, Pranit, hello. Jivika, hello, Jivika. Rishika, Yes, sir. Rishika, what, Yes. which were the three rivers which originated from the southern part of the highland? Uh, uh, what was that name? How do I pronounce it? Uruguay, something like that. Okay. And What did you pronounce the first river? Uruguay, It's Uruguay. Uruguay. Okay, sorry. Second, Oh, I don't remember, sir. it's Uruguay, Paraguay, and Parana. Parana, Okay, sir. Paraguay, and Uruguay. Fine. Okay, keep in mind then. A good try, but fine, not an issue. You will do better in the next time. I want one more per person to answer my question. Tanvi. Hello, Tanvi. Hello. Hello. Hey, she left out. It's not fair. She might be joining again because she was not audible, I guess. She might be joining again. Just waiting for her. So can she join in next 1 minute? Or we move ahead. Let's wait for her for one more minute. Okay, meanwhile, I ask the question to someone else. Same question would be turned out for her as she is not in. I can see. Priyanka. Priyanka. Hello. ना तो आंसर ही नहीं करना है. I don't mind. Jivika, did you answer? Yeah, she is back in. Tanvi. हेलो. कौन निकल गया? जीविका निकल गई. Tanvi, you can unmute yourself now. Yeah, great. Can you speak something so I can just check whether you are audible or not? Can you say something? No, no, you are not audible again. Fine, not an issue. You are able to hear me. That's a lot. Like that's fine with me. And Jivika is back again. Jivika, hello, Jivika. Yes, sir. Yeah, you are audible. Don't worry. So I just wanna ask that which three states do that Guiana Highland covered in Brazil? Which were the three states that Guiana Highland covered in Brazil?
Hello. Okay, Yes, anyone sir. among you can answer me? Do you know that or don't? The one is para, other Okay, two I don't remember. okay, fine. So anyone who wants to try the answer? Anyone among you? Amapa. Okay, Jason and Jyotika same, like answered the same. Okay, there's one more. Three states I said. One was what Jyotika told was Para, right? And Jason and Jyotika told about the Amap. There is one more. Roraima. Roraima. Very good, Rishika. Great. So it's Roraima, Amapa, and Para. Oh, Priyanka. Fine. Great. Okay. So let's move ahead then. So guys, you need to pay attention a little bit because this part is very much important for the other chapters as well. Okay, moving ahead, the great escarpment. We have covered the highland part. Now coming to the great escarpment. As you can see that the great escarpment is demarcated over here in the map. You can see the circle, and I've also drawn in the earlier map. So it occupies a very small area. The nature of its slope and the effect it has on the climate makes a great physiographic region. भले वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, बट उसका जो इफेक्ट है क्लाइमेट के ऊपर, फिजियोग्राफी काफी अलग हो जाता है उस एरिया का. फॉर एग्जांपल जैसे हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है, वो एशिया का बोल सकते हैं सबसे बड़ा चैन माउंटेन है, बट उसकी वजह से हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में काफी फर्क पड़ता है, काफी ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है हमारे क्लाइमेट पे. सिमिलरली द escarpment does. The eastern side of the highland is demarcated because of escarpment. तो हाईलैंड अपना ये पार्ट है, उसका जो ईस्ट वाला हिस्सा है वहां पे आता है आपका ये escarpment. देखो ऐसा होता है. The average height is around 790 meters. No doubt कहीं पे 790 से ज्यादा होगा तो कहीं से 790 से कम है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द एवरेज एल्टीट्यूड. ओके, so in this region the altitude of the escarpment is 790 meters की हाइट है यहाँ पे. ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर पिक्चर लेने की कोशिश की. इन सम रीजन्स द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, कहीं कहीं पे हाइट थोड़ा सा कम हो जाता है. द escarpment इज वेरी स्टीप, particularly from Sao Paulo to Porto Alegre. अब पोर्टो एलेग्री से लेके या साओ पालो से लेके पोर्टो एलेग्री तक यहाँ पे escarpment काफी ज्यादा स्टीप है. स्टीप का मीनिंग मैंने आपको दिखा दिया था इमेज में, राइट? यहाँ पे कट्स हो जाएंगे, इस तरह से बोल सकते हो. अब जिस तरह ये वेस्टर्न घाट, आपको मालूम है ना इंडिया का वेस्टर्न घाट कैसे एक्ट करता है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पे, कि जो मानसून विंड्स आता है साउथ वेस्ट से, जो केरला से मानसून विंड्स आता है, यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट काफी बादलों को रोक देता है. ज्यादातर बारिश कोस्टल एरिया में हो जाती है. फिर वो बादल जब हल्के होंगे, वो ऊपर उठेंगे, तब ये माउंटेन एरिया को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे आता है रेन शैडो रीजन. बिकॉज यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका पास ज्यादातर पानी यहाँ पे खाली हो चुका है. फिर जब ये बादल आगे बढ़ेंगे तब उनमें वापस पानी जमा होगा और देन वापस बारिश होगी. द escarpment act as a barrier to the south east trade winds. अब अपने यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, इनके यहाँ पे साउथ ईस्ट मानसून विंड्स है. ठीक है, गिविंग राइज टू द रेन शैडो रीजन और एरिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड. हाईलैंड के नॉर्थ पार्ट में कैसा होगा? रेन शैडो होगा. और हाईलैंड के साउथ पार्ट में कैसा होगा? काफी ये रेन एरिया होगा, राइट है. द रीजन टू द नॉर्थ इस एरिया इज कॉल्ड एज ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. जो नॉर्थ वाला जो एरिया है, इसे रेन शैडो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन लोग लिखते हैं ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर. ठीक है, ड्रॉट मतलब सूखा, तो ज्यादातर यहाँ पे सूखा रहता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. Okay, so that's all about the let's say the escarpment part. I can just show you again this moment.
So you can take the screenshot of this one. And then this one. Let the arrows come first, and then you can click up. Okay. As you can see that the clouds appear darker on the your left hand side, and that is south part, and more light or brighter in the north part, which has less amount of water in it. Sir, yes. Okay. Okay, done. So take the screenshot of this one as well. Oh, this one, not the first one. This one. Okay. Done. Okay. Now coming towards the Done. coast area. Now, Brazil has got a coastline of about 7,400 kilometers. Can anybody let me know what is the coastline of India? What is the coastline of India? What, what is the amount of coastline in India? Anyone among you, please? 7,500. Very good. So we have got a coastline of 7,500 kilometers. That is means 100 kilometers more as compared to Brazil. But Brazil has just got about 7,400 kilometers. The coastline of Brazil can be divided into the northern coastline and the eastern coastline. They don't have the southern coastline. Okay? So north and eastern coastline पड़ता है इनका. You take the screenshot of this one, and then I'll let you know what is the division of northern and the eastern coast. Hope you're taking the screenshots. Then I just count 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Then now the division of the northern and the eastern coastline is from Amapa till Rio P Norte. I'm so sorry in case states के नाम ऐसे ही है. Can't do anything. Amapa till Rio Grande di Norte. यहाँ तक आता है आपका northern coastline. And उसके आगे से this can also be called as North Atlantic coast, क्योंकि North Atlantic Ocean वहाँ पे है. From there to the eastern coast extends to the south. उसका नीचे south तक आ जाता है आपका eastern coast. वहाँ से लेके नीचे तक. Just a moment. If you want to take a screenshot of this one. 5, 4, 3, 2, and 1. The northern coast is characterized by mouth of many rivers, including Amazon. Now, what is a mouth? Mouth is nothing but not your mouth, not even mine. It's a point where the sea or the ocean and the river meet. So this part. तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोस्ट या फिर नॉर्दर्न कोस्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक है. तो इसमें आप देखोगे इवन जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले, even that river meets up over here, even the Amazon river meets up over here. So it's a mouth of many river which flows through the north direction. Therefore the region is low lying region. अब ऑब्वियस है ना भाई, अगर रिवर्स उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वो एरिया एक लो लाइंग एरिया होगा, है ना. On this coast lies the Marazzo Island and Marazzo Bay and Sao Marcos Bay. यहाँ पे 3 है. एक है, you can also zoom it yours. Marazzo Island
यहाँ पे Marazzo Bay on Saro Marcos Bay. What is bay? Bay is nothing but a water body which is surrounded three sides by land. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बीच में जमीन पानी है और तीन जगह से जमीन है. That is called as bay. That's the reason Bay of Bengal अपने यहाँ पे. ठीक है. Marazzo is a large coastal island located between the mouth of river Amazon and river Tocantins. तो यहाँ पे ना दो रिवर्स है. यहाँ पे से एक जाती है रिवर टोकांटिस और यहाँ से ये आपका अमेजोन रिवर. इन दोनों रिवर के बीच में आता है आपके मराजो आइलैंड. कोस्टल आइलैंड है बिकॉज वो कोस्ट से काफी कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट टू द मेन लैंड की तरफ है उनके, इसके लिए उसको कोस्टल आइलैंड कहा जाता है. तो वहाँ पे दो रिवर्स मिलती है, दो रिवर अमेजोन और दूसरा रिवर टोकांटिस. आई होप आपने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, राइट. अब यहाँ पे देखो तो काफी रिवर्स है. आई जस्ट कम अक्रॉस अगेन. कोस्टल एरिया ये रहा जो आपको ब्लू में यहाँ पे शेड लाइन बना के दी मैंने, एंड ये है आपका अमेजोन रिवर. और दूसरा यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे नाम देखो, नाम पढ़ लो यहाँ पे. ये रिवर टोकांटिस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रिवर टोकांटिस है. फिर यहाँ पे जाके मराजो आइलैंड कैसे, यहाँ पे रिवर अमेजोन है जो मराजो आइलैंड में जाके मिलता है. तो ऐसे बाकी रिवर्स आप यहाँ पे देख रहे हो. अमेजोन रिवर बेसिन यहाँ पे ये रहा, और दूसरा ये आपके परागे पराना और उरुगे जो था वो. ठीक है. So the eastern coast receives large number of small rivers. इनका ईस्टर्न कोस्ट जो है, ईस्टर्न कोस्ट कौन सा था, ये वाला था. यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर्स आके मिलते हैं. The only major river meets the Atlantic Ocean is here is Sao Francisco. यहाँ पे एक ही रिवर है जो सीधा जाके अटलांटिक ओशन में मिलती है, विच इज साओ फ्रांसिस्को. ऑब्वियसली ये रिवर अब नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी बिकॉज इस एरिया का लैंड का जो स्लोप था थोड़ी देर पहले इसमें पढ़ा था कि नॉर्थ डायरेक्शन में. द ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस. यहाँ पे काफी रेत होगा, काफी बहुत ज्यादा बीचेस हैं आपको देखने मिल सकते हैं. द ब्राजीलियन कोस्ट इज protected in some areas by coral reefs and atoll islands. Coral reef और atoll islands, ये coral reef है जो ऊपर आप फोटो में देख रहे हो. यहाँ पे आपने देखा होगा जो स्कूबा डाइविंग वगैरह के इमेज दिखते हैं उसमें होते हैं. एंड इवन दिस अटोल आइलैंड्स, ये हमने निकोबार में भी पढ़ा था, अंडमान निकोबार में, अगर आपको याद हो. सिमिलर है ना. ठीक है. तो फटाफट आप कोस्टल प्लेन एरिया एक बार पढ़ लो. सर कोस्टल प्लेन जस्ट कोस्ट पढ़ो एक बार. कुछ डाउट है तो पूछ लेना. डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वापस से तैयार रहना. चलो चालू करते हैं क्वेश्चन पूछना फिर. तो द फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू ऑल, कोई भी आंसर कर सकता है. ठीक है. What is the extent of the northern coast? I mean to say कि नॉर्थ कोस्ट जो है इनका, जो नॉर्दर्न कोस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है? Anyone can answer among you? Ampa province in the north to Rio de Grande Norte. How do I pronounce that? Okay, fine. Rio Rishika, de Rio Grande di Norte. Okay. Yes, sir. Okay. Rishika, you wanna try it? He said right. He said right. What about you then? Amapa to Rio de Grande Rio Norte. Grande. Yeah, I knew that. Norte. That pronounce is very different. Fine. Good. Okay. How many island and bay? Which island, which bay does the north coast have? What are the names of those bays and those island? Marajo and Sao Marcos.
साओ मार्कोस बे है, right? Not island. So when you are like Yes. telling anyone when you're telling right or when writing down, so Marazo Island, Marazo Bay, and Sao Marcos Bay. So you need to mention which is the island and which is the bay. Okay, because तीनों को हम island के कैटेगरी में या तीनों को हम bay के कैटेगरी में नहीं डाल सकते ना. दो bay है और एक Marazo Island है, ठीक है? Okay. Next, my question would be like this moment. I've stopped the screen sharing purposely, and let me find those questions. Here are the questions. Okay, which is the a major river which meets the Atlantic Ocean in the eastern coast? Sao Francisco. Oh, great. South Francisco. South Francisco. South Francisco. That's a very quite simple answer, no? Okay, fine. Okay, one more simple question I have got is simple and be ready. Mm, I'm just searching out the question. Just a moment. I need to frame it out now. Okay. Now the Brazilian coast is protected by dash and dash. Atoll Islands and coral reefs. Islands. There are two people who answered. One was okay. Anyone? Both were right because they were like both were telling right similar answer. Good. Or might be an echo because you might be unmuting yourself. You're like on our speaker mode. That sound can be echoed. Fine. That answer was very correct. So here's a chance that I move ahead to the next topic of ours. So let me share my screen again. Okay, now coming towards the plain area of Brazil. Now plain area which consists this part, basically this area, because this is a highland area, as you know that. This is also a highland area. Now coming about the plain area. The Amazon basin is one of the Amazon river basin called as Amazon plain भी कह सकते हैं इसे. And the next is Parague Parana source region. ठीक है? So they got two plain areas. One is Amazon river basin and second is Parague Parana source region. ठीक है? Now talking about the Amazon plain lying in the northern part of the Brazil generally slope eastward. ईस्ट की तरफ जाता है. क्यों? ऑब्वियस है ना, लैंड का स्लोप उस तरफ है, इसलिए. तो ध्यान में रखना कि अमेज़न का फ्लो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है. It is quite wide in the west, about 1,300 kilometers, and narrow towards the east. वेस्ट की तरफ अमेज़न ज्यादा ब्रॉड है एंड ईस्ट की तरफ उतना नैरो हो गया है. I'm just talking about the plain area, not this the river part. मतलब प्लेन एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, उसके बीच में आपका रिवर आता है. Its width is minimum where the Guiana Highland and the Brazilian Highland come closer. That's 240 kilometers. अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था Guiana Highland है और यहाँ पे है आपने Brazilian Highland, जहाँ पे ये दोनों हाईलैंड पास में आते हैं. कौन सा वाला? Brazilian Highland और ये Guiana Highland जहाँ पे क्लोज आते हैं, वहां पे ये अमेज़न प्लेन क्या हो गया है, नैरो हो गया है, और नहीं तो अमेज़न प्लेन एरिया काफी ब्रॉड है. तो जहाँ पे नैरो हुआ है दैट इज अबाउट 240 किलोमीटर्स, जहाँ पे ब्रॉड है दैट इज अबाउट 1300 kilometers. As the river approaches the Atlantic Ocean, the width of the plain increases. अब जैसे फिर रिवर आगे बढ़ता है अटलांटिक ओशन की तरफ, फिर से उसका width बढ़ जाता है, बिकॉज वहां पे डिपोजिशन एक्टिविटी भी ज्यादा होती है ना. So you can take a screenshot of this one. Done.
स्क्रीनशॉट्स में आपको जैसे रिवीजन पर्पस से देता हूँ, whenever you look into your text book and when you read it, so you can have like a graphical presentation or like a imaginary view. तो रिवीजन के लिए भी अच्छा हो जाता है. Okay, there are forested area and large inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth. तो अमेज़न प्लेन कैसा है? अमेज़न प्लेन एरिया एक फॉरेस्टेड एरिया है. मेजर ऑफ द फॉरेस्ट वही है, और आपको पता ही है बहुत बड़ा फॉरेस्ट अमेज़न का जो जंगल है ज्यादातर फेमस है फॉरेस्ट के लिए फेमस है. लार्जली इनएसेसिबल मींस वेयर यू कैन नॉट इजीली गेट इनटू इट. आप इजीली वहां पे नहीं जा सकते हो, ट्रैवल नहीं कर सकते हो, रोड्स नहीं है वहां पे. ऑब्वियसली जंगल के पीछे कौन रोड बनाता है, राइट? और वहां पे फ्रिक्वेंटली फ्लडिंग होता है. अब जैसे बारिश के सीजन में यहाँ पे अमेज़न में बारिश, तो आपको बता दूं यहाँ पे दिन रात मतलब हर दिन बारिश होती है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. अमेज़न में हर दिन दोपहर को आफ्टरनून में बारिश होती है. दैट वी कम अक्रॉस दी क्लाइमेट में जब आएंगे तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? तो फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होती है एंड डेंस ग्रोथ है, बहुत ज्यादा पेड़ है यहाँ पे. मोस्ट ऑफ द अमेज़न प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Any area which is occupied between equator and tropical line, either it be tropic of cancer or it will be tropic of capricorn. इंडिया के बीच में से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो सेंट्रल इंडिया एंड इक्वेटर के बीच का जो गैप है साउथ पार्ट में, यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, देन योर कर्नाटका, मध्य प्रदेश का हाफ पार्ट, दैट कम्स इनटू ट्रॉपिकल्स बिकॉज वी लाई बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उसी तरह इक्वेटर से नीचे की तरफ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो अमेज़न जो है वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है. इसके लिए वो जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट जिसको आप हिंदी में कहते हो वर्षावन एक तरफ से, तो इट्स अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. The other plains in Brazil are located in the southwestern part of the highland. ये परागे पराना वाला जो बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ प्लेन एरिया जो साउथ वेस्ट पार्ट में आ रहा है. They form the source region of Parage and Parana rivers. तो यहाँ पे परागे पराना रिवर्स बनते हैं इनकी वजह से, ठीक है? The source region of Parage slopes towards the south and Parana slopes towards the southwest. देखो परागी जो रिवर है वो स्ट्रेट साउथ की तरफ जाता है, लेकिन पराना रिवर जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे आता है पंतनल, जो उनका है वेटलैंड. पंतनल यहाँ पे अपने मैप में कहा मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट रुकना. ये दिख रहा है यहाँ जहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ, ठीक है? मैं ये तो आपको जूम करके दिखा देता हूँ, एक मिनट. गॉट दिस? पंतनल लिखा देखो यहाँ पे. तो पंतनल का एक्चुअल इमेज आपको दिखाऊं तो ये है. दिस इज अ वेटलैंड. इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड. वेटलैंड क्या होता है? पोस्ट ऑफ जमीन पानी मतलब इतनी भी ज्यादा जमीन नहीं कि यू कैन डेवलप समथिंग ओवर देयर, ठीक है? मोस्ट ऑफ वाटर. इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द हाईलैंड. हाईलैंड के साउथ वेस्ट पार्ट में आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैप में. इट इज अ रीजन ऑफ swamps and marshes in the northwestern of Mato Grosso do Sul. There's a strait. यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है Mato Grosso do Sul in Brazil and it extends into Argentina. और ये कहाँ तक फैला हुआ है? अर्जेंटीना तक फैला हुआ है. Besides the mainland, some islands are included in Brazil. कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है जो ब्राजील में इंक्लूडेड है. ओके, बहुत ही छोटे. They can be classified into coastal island and marine islands. कुछ coastal island कहलाते हैं, कुछ marine islands कहलाते हैं. अब जो mainland से दूर है, काफी coastal area से दूर है, तो they are called as marine islands. और जो coastal area से काफी अटैच है, जैसे मराजो था, तो उसको हम बुलाएंगे coastal island. Oh, I'm so sorry. We reach into islands. I'm so sorry. Okay. तो प्लेन्स तक रहो, प्लेन्स तक देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो. आई होप यू वर टेकिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. ओके, जैसे एक एक पॉइंट आ रहा है, आपने देखा यहाँ पे, could have taken the screenshots. ठीक है, तो प्लेन एरिया हो गया, पर फटाफट रिवाइज करो, देन वी स्टार्ट विद द आइलैंड पार्ट. गलती से आइलैंड में चला गया था फ्लो में, तो यू कैन जस्ट सी टुवर्ड्स द प्लेन. एक बार प्लेन एक बार पढ़ लो आप, डाउट है तो बोल दो ना.
Sukant, you can read it from the textbook or you can read it from the screenshots. Questions मैं पूछूंगा obviously. Yes, Jason, I knew that my mic is muted. I was not teaching. I told you, you revise कर लो, then I will ask questions. I just muted myself so that you can revise yours. Then, are you all done with the revision part? May I ask questions? Yes. Okay, great. We were doing the कौन सा पढ़ते थे यार अपना? Plain area. Okay, fine. What is the name of the largest wetland of the world? What was the name of the largest wetland of the world? Pantanal. Pantanal. Okay, good. And it extends from where to where? I mean, what is the extent of it? What is the extent of Pantanal wetland? कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ है? Search out, जल्दी. Anyone can answer, or I will take the names. Yes, Sarvish. बोलो. Northwestern Mato. Northwestern Sorry. Mato. It extends from northwestern northwestern Mato Mato Grosso. Grosso do Sul. Yes, in Okay. Brazil, Till. and it extends to Argentina. Okay, good. Fine. Divisha. Hello. Hi. In which direction does the Amazon River or the Amazon plain slope? In which direction does the Amazon plain slope? Eastwards. I'm sorry, you're not audible. You can hear me now? Sorry? Can you hear me Yeah, now? yeah, I can hear you now. Yes. Eastwards. Okay, very good. And can you just help me out? What is the width of Amazon plain? With Yeah, width. 1,300 kilometer. Is it 1,003 kilometers throughout? एक जैसा है हर जगह पे 1,300 kilometers? Don't take a stress. Don't take a tension over it. Yeah. Okay, don't worry. Your partial answer is right. No doubt with that. Visha, thank you. And anyone can else help me with the, what is the width of Amazon River or the Amazon basin? Sorry, plain area. 240 kilometer. Is it? I mean, One gave me half answer and then again half answer is given by Rishika. Is it any coordination between you two, Divisha and Rishika? Okay, it is broader towards the western part, which is 1,300 kilometers, and narrow towards the
eastern part, which is 240 kilometers. This should be 1540 kilometers, like the whole. what? Did you add it up? I mean, did you add the entire? Yes, sir. अरे कार्टून ऐसा नहीं है, इमेज नहीं देखा क्या तुमने? अरे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखो ये 2 एरोस दिख रहे हैं आपको, 2 वाले। मैं ये बोल रहा Yes, था sir. आपको कि प्लेन एरिया वेस्ट में 1300 किलोमीटर है और ईस्ट में 240 किलोमीटर है, समझा? दोनों को ऐड थोड़ी नहीं कर सकते हो, ऐड करोगे तो यहाँ से यहाँ तक अमेजोन हो गया क्या? Sorry, sir. That's okay, don't be sorry. ठीक है, okay. My question is why it is 240 kilometers on the eastern part? Why it is 240 kilometers on the eastern part? क्वेश्चन समझा? अगर 240 किलोमीटर है ईस्ट साइड में, क्यों ऐसा वहां पे जाके क्यों नैरो हुआ? क्या रीजन हो सकता है? Sir, do we have to search the answers from the textbook? You can, if you can. No, I've got no problem with that. I need an answer. Okay. Thank you. Okay, all, yes, y'all, all are given the same opportunity. You can search your answers from your textbook and you can let me know if possible by you. You all have got an equal opportunity. आंसर दो, सही है तो अच्छी बात है। यस ज्योतिका। आई थिंक क्योंकि वो गुआना आइलैंड और ब्राजीलियन आइलैंड से क्लोजर हो जाते हैं तो Very अमेज़न true. का वो कम हो जाता है मीडिया। Yes, 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 you are right. Yes, because of the two islands, sorry, not islands, the two highland area, the Guiana Highland and the Brazilian Highland, come closer to each other, and that's the reason they narrow down the plain area of Amazon. Okay, very good. So we move towards the island part now. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी island की तरफ, जो मैंने गलती से शुरू कर दिया था in flow. So here we go towards the island. Okay, we have started already with this. Fine. Besides the mainland, some islands are included in Brazil. They can be classified into coastal island and marine island, as we have spoken earlier. Okay. Most of the coastal island have formed due to deposition work. अब कोस्टल आइलैंड कैसे डेवलप होता है? बिकॉज वो कोस्ट के पास है और वो डिपोजिशन एक्टिविटी जो होती है रिवर्स की, ये हमारे यहाँ पे भी हमने देखा था, राइट? सुंदरबंस जो मैंने आपको दिखाया था, तो ज्यादातर डिपोजिशन एक्टिविटी की वजह से बनता है आपका ये कोस्टल आइलैंड। मरीन आइलैंड्स वर द पार्ट ऑफ मेनलैंड। मरीन आइलैंड्स कभी न कभी तो ये मेनलैंड का हिस्सा था, जो आज समुद्र के अंदर थोड़ा सा ढक चुका है। They are more than 300 kilometers away from the mainland in Atlantic Ocean. जैसे हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी नियर अबाउट 200 to 300 किलोमीटर के दूर है, उसी तरह यहाँ पे मेनलैंड से ये भी कुछ 300 किलोमीटर अवे हैं अटलांटिक ओशन में। These islands are mostly rocky and they're at the top of submerged mountain. देखो मेनली आइलैंड का कोई फ्लोटिंग लैंड मास नहीं होता, इट्स अ माउंटेन जो पानी में ढक चुका है चारों तरफ से और सिर्फ उसका जो टॉप है वो दिख रहा है, जिसको हम आइलैंड बुला लेते हैं। और ज्यादातर यहाँ पे आइलैंड जो है वो रॉकी है, मतलब रॉक्स है, जैसे अपने यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में है अरेबियन सी की तरफ। These islands are mostly rocky and they are top of submerged mountains. कहीं कहीं पे हमको अटोल्स भी देखने मिलते हैं। Not talking about the drainage part. Now आते हैं हम रिवर्स में। फिजियोग्राफी खत्म हो गया है, ठीक है, आइलैंड में इतना ज्यादा उनका कुछ है नहीं बात करने लायक। Now coming towards the river system, the 3 river system, Amazon basin, पर आगे पनाना रिवर सिस्टम, देखो यहाँ पे पर आगे स्ट्रेट नीचे आया,
और पराना जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हाईलैंड। तो 3 रिवर सिस्टम है, एक अमेजोन जो यहाँ पे था, परागे पराना एंड देन साओ फ्रांसिस्को। देन कोस्टल रिवर्स, जो छोटे छोटे नदियां हैं ये कोस्टल में जो जाके मिलते हैं, दे आर द कोस्टल रिवर्स। लेट्स टॉक अबाउट द अमेजोन बेसिन। अमेजोन कलेक्ट्स इट्स हेडवाटर्स, मतलब जो उसका मेन सोर्स है पानी का, फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन इन पेरू। यस, अमेजोन रिवर भले ही ब्राजील में सबसे बड़ा हिस्सा है उसका, बट वो उसके नेबरिंग कंट्री पेरू से शुरू होता है। पेरू में एक माउंटेन है विच इज नोन एज एंडीज माउंटेन, उसके ईस्टर्न स्लोप से शुरू होता है आपका ये अमेजोन। अमेजोन रिवर्स receives huge discharge. This is about 2 lakh cubic meter per second. What is cubic meter? एक क्यूब आपने देखा होगा, क्यूब स्क्वायर बॉक्स जो होता है, बॉक्स क्यूब, ठीक है। वो अगर आप 2 लाख क्यूबिक मीटर, मतलब 1 मीटर के बॉक्स बनाओ ऐसे, 2 लाख स्क्वायर मीटर, सॉरी 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी में पर सेकंड में आता रहता है। एज ए रिजल्ट Amazon washes away the load supplied from it from the catchment area. कैचमेंट एरिया मतलब जो माउंटेन एरिया है उसमें से जो मिट्टी कट डाउन होती है। अभी 2 लाख क्यूबिक मीटर पर सेकंड में पानी आता है तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो ये अमेजोन रिवर क्या करता है, अपने साथ में बहुत सारे मिट्टी बहा ले जाता है फोर्स ज्यादा होने की वजह से। कॉन्सिक्वेंटली दैट इज एज अ रिजल्ट सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ। इसीलिए अमेजोन के यहाँ पे माउथ पे ज्यादा सेडिमेंट्स डिपॉजिट नहीं होता। A dense network of tributaries, which is a characteristic of features of river mouth of area, is by and large absent in the माउथ रीजन ऑफ अमेजोन। और अपने सुंदरबन का तो फोटो मैंने आपको दिखाया था, गंगा रिवर के टाइम पे जो सुंदरबन दिखाया था मैंने आपको, तो वहां पे आपने देखा होगा कि काफी रिवर जब सी में या ओशन में एंटर होती है तो काफी डिवीजन हो जाता है, काफी ज्यादा ब्रांचेस में टूट जाता है, ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाता है। अब अमेजोन में फोर्स इतना ज्यादा है कि वो मिट्टी को अपने साथ कट डाउन तो करता ही है साथ में, लेकिन ट्रिब्यूटरीज नहीं फॉर्म करने देता माउथ एरिया पे। इसके लिए वो डायरेक्ट उसको पानी भी मिट्टी भी जाके वो सी में ही डायरेक्ट डिपॉजिट करता है। इंस्टेड ऑफ वी फाइंड सीरीज ऑफ आइलैंड डेवलप एट द माउथ ऑफ द अमेजोन बियॉन्ड द कोस्ट लाइन इन द अटलांटिक ओशन। इसीलिए यहाँ पे अटलांटिक ओशन में भी अगर आप देखोगे कोस्ट लाइन के पास काफी आइलैंड डेवलप हो जाता है, जिसमें से एक मराजो आइलैंड है, ठीक है। तो मिट्टी कोस्ट लाइन के पास नीचे ज्यादा डिपॉजिट है। ये देखो ये एक्चुअल अमेजोन का है, हाँ ऐसा मिट्टी वाला पानी है, ठीक है। एट द माउथ विथ द अमेजोन चैनल इज 150 किलोमीटर वाइड। कितना है? 150 किलोमीटर है ये, एक किनारा से दूसरा किनारा, एट द माउथ एरिया जहाँ पे ओशन को मिलता है अमेजोन। इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे मिट्टी इतना डिपॉजिट होगी। आउट ऑफ द कोर्स ऑफ अमेजोन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन, और इसीलिए इसमें बोट्स फेरीज चलती हैं, नेविगेशन के लिए यूज होता है। अब इतना ब्रॉड एरिया है तो ऑब्वियसली नेविगेशन के लिए यूज होगा ना। कमिंग टू द परागे पराना सिस्टम, इन दोनों रिवर्स की बात करूं तो मैं इन रिवर्स को फिलहाल मैं ब्राजील की ही बात करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे आके रुक गया। आप देखोगे आगे भी पार्ट है इसका, तो मैं आगे बाद में लेके जाऊंगा। तो जस्ट पे अटेंशन ओवर दिस टू रिवर्स। These two rivers are located in the southern western part of the Brazil. Both river, देखो अभी आके मिल गए वहां पे, both river form the catchment of river Plata in Argentina. अब जैसे ही ये रिवर यहाँ पे आता है, इन दोनों के मिल जाते हैं तो वो बन जाएगा रिवर प्लाटा। पर आगे और पराना जब मिल जाएगा तो क्या बनता है, रिवर प्लाटा, अर्जेंटीना में जाके, और फिर वो आगे बढ़ेगा। These two rivers and river उरुगे, अब आगे से जाके उरुगे रिवर भी उसके अंदर मिलेगा, ये रहा, ठीक है। In the extreme south of the highland collect their headwaters from the southern portion of the highland. तो हाईलैंड का जो साउथ पोर्शन है, ये आपका हाईलैंड था यहाँ पे, उसके साउथ पोर्शन से ये पानी इकट्ठा करते हैं और अर्जेंटीना में पानी लेके जाते हैं, देन वहां से साउथ अटलांटिक ओशन में चले जाते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन।
नाउ कमिंग टुवर्ड्स साओ फ्रांसिस्को। तो वो जो स्क्रीनशॉट था दैट वाज फॉर परागे पराना, इसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया था, ठीक है। नाउ साओ फ्रांसिस्को के बारे में, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर इन ब्राजील, ये तीसरा इंपॉर्टेंट रिवर है। द एंटायर बेसिन ऑफ द रिवर इज विद इन द ब्राजील, ऑब्वियस है, ये एक बोलते हैं ना देशभक्त रिवर है, उसी कंट्री के अंदर से शुरू होता है और उसी कंट्री में खत्म होता है। अभी अमेजोन भी देखो, नरा ही था, पेरू से आया हुआ था वो, राइट है। और ये परागे पराना तो भाई देशद्रोही निकले, है ना, अपने कंट्री से ओरिजिनेट होकर दूसरी कंट्री में पानी लेके जा रहे हैं, बट ये साउथ फ्रांसिस्को बेचारा देशभक्त है काफी। अब देखो यहाँ पे साउथ फ्रांसिस्को रिवर, इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड, river flows towards the north for a distance of 1000 kilometers over the plateau। अब प्लेट्यू में ये यहाँ से ओरिजिनेट होता है और 1000 किलोमीटर तक सीधे नॉर्थ की तरफ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है देखो, अभी आप देखोगे यहाँ पे टर्न है, देखो यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, अच्छा फिर टर्निंग है उसका। द रिवर इज नेविगेबल फॉर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स इन इट्स डाउनस्ट्रीम बीच। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा नियर अबाउट 250 किलोमीटर्स तक ये नेविगेबल है, मतलब आप उसके अंदर बोट्स वगैरह चला सकते हो। देन इट टेक्स अ शार्प ईस्ट टर्न, देखा ईस्ट टर्न ले लिया ना अभी इसने यहाँ पे। Then it takes a sharp eastward turn to enter the coastal strip along with the Atlantic Ocean. Talking about the coastal rivers, Brazil had a number of short coastal rivers, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं। The coastal area being densely populated, these river attain significance। अभी जैसे अपने यहाँ पे कोस्टल एरिया है, मुंबई थाने ये सब, इसके लिए ज्यादा पॉपुलेटेड है। हाँ भास्कर, ठीक है, ओके। सो जस्ट मोम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो दिस कोस्टल रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है इनको यहाँ पे बिकॉज ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है यहाँ पे, और इन रिवर्स को फिर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाता है बिकॉज ये एक सर्वाइवल रिवर हो जाता है कि भाई यहाँ पे लोगों को ज्यादातर पानी मिलेगा। कोस्टल रिवर की बात करें तो रिवर परिनीबा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऊपर ऊपर की तरफ देखो ये वाला, ठीक है। रिवर परिनीबा और रिवर इतापेकुरु, नाम सुन रहे ना ध्यान से, रिवर पराइनीबा और रिवर जो है इतापेकुरु, आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है रिवर इतापेकुरु और ये है रिवर परिनीबा, ठीक है। ये दोनों ही नॉर्थ की तरफ फ्लो होते हैं, फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स टू मीट द अटलांटिक ओशन। फ्रांसिस्को खत्म, या हम कोस्टल रिवर्स की तरफ है, ठीक है। द रिवर्स दैट एंटर द साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेडवाटर्स फ्रॉम द एस्क्रैपमेंट। अब जो एस्क्रैपमेंट एरिया था याद हो आपको यहाँ पे वाला, ठीक है। तो यहाँ से इन कोस्टल रिवर्स को पानी मिलता है और ये साउथ अटलांटिक ओशन में जाके अपना पानी गो डाउन करते हैं। रिवर पुरुगैको, ये वाला, ठीक है, रिवर जो दिख रहा है पे, enters the Atlantic Ocean near Salvador town। Salvador town one of the famous spot है, जैसे साओ पालो है, पोर्ट पलेग्री है, रियो दी जेनेरियो, वैसा साल्वाडोर करके टाउन है जहाँ पे ये रिवर पुरुगा को जो है वो अटलांटिक ओशन को मीट अप करती है। तो नाउ ड्रेनेज ऑफ हिमालयंस इतने हैं, एक सेकंड, ये अपना वाला जो हिस्सा है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम अप हो चुका है, 3:30 इट इज, एंड आई न्यू दैट यू पीपल आर लाइक कि 3:30 हो गया बस हो गया डोंट वरी, वैसे भी बड़ा पार्ट है, यू कैन सी दिस, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो आज हमने ब्राजील का पूरा ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज एज वेल, ठीक है। तो ये तो मैं आपको ड्रेनेज, अगला ब्राजील का ड्रेनेज और इंडिया का ड्रेनेज वापस से रिवाइज करा दूंगा। इंडिया का ड्रेनेज तो हम फ्रेशली लेंगे, ब्राजील का ड्रेनेज सिस्टम जो है दैट इज रिवर्स सिस्टम, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। Till then, guys, enjoy, take care, bye bye।